Today we will start with a very important chapter, and that is isomerism. We will begin with the isomerism. So this is very important chapter. एक्सक्लूसिव क्वेश्चन तो इससे पूछे ही जाते हैं और इसका हर एक जगह पे यूज होता है। तो बेसिकली आइसोमेरिज्म क्या होता है, पहले आपको मैं इंट्यूटिव आइडिया दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हमारे पास C5 और H12 है, एंड हम लोग देखे थे कल इसके हम बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, राइट। जब हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे तो इसके हम बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक तो ये हो गया सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। एक ये हो गया, देन दिस वन 5 carbon in the straight chain, then 4 in the straight chain and 1 carbon over here, then 3 in the straight chain and 1 carbon here and 1 carbon here. So these are the 3 possible structure of C5H12. So although all of them have same molecular formula, but their structures are different, right? Now if their structures are different, then obviously their properties are also going to be different. So they are known as isomers of each other. The substances which have same molecular formula but different physical and chemical properties. Why I am not telling different structures? Because मैं different structures बोल देता हूँ, then it confines to a particular type of isomerism, that is known as structural isomerism. And there are other kinds of isomerism also, like stereoisomerism is there, and in the stereoisomerism also there are 2 types of isomerism, configurational and conformational. And again the configurational is further divided into geometrical and optical. So up to class 10 only the structural isomerism is there in the syllabus, and that's why हमको definition क्या याद करा दिया जाता है कि the substances which have same molecular formula but different structures, but that is a particular kind of isomerism. Now if we want to give the general definition of isomerism, so it will be the different substances which have same molecular formula but different physical and chemical properties. Got the point? This point is clear or not? So first write down the definition. ये example copy कर लेना, फिर then you write down the definition. Substances which have same molecular formula but different physical and chemical properties. Substances which have same. Now isomerism can be classified like this. Suppose isomerism, so it is of 2 type. It is of 2 type, structural and stereo. Structural isomerism, and then stereoisomerism. Now structural isomerism is further divided into 5 types. There are 5 types of structural isomerism. First one is chain isomerism. Next one we have position isomerism. Then next is functional isomerism. Then metamers, and then tautomer. Metamer and then tautomer. And stereo is further classified into 2 types: configurational
configurational and conformational. And configurational is further divided into two types: geometrical and optical. Geometrical and optical, right? So this is the classification. Obviously classification को आपको याद ही रखना होगा. Anyway, वो पढ़ते पढ़ते आपको सब याद हो जाएगा. Don't worry about that. हाँ वो तो याद हो जाएगा. Clear? Yes sir, clear. So now we'll start. First, we will start with the structural isomerism. So first, we'll start with the structural isomerism. Structural isomerism. Okay. So first, write the definition. Two or more substances having the same molecular formula but different structures. Two or more substances having same molecular formula but different structures. ठीक है? And one important thing about structural isomers is that all of the structural isomers will have different IUPAC name. They will have different IUPAC name. यदि उनके IUPAC name same आ जाए मतलब वो structural isomers नहीं है. Will have different IUPAC names. ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं. फर्स्ट विल बिगिन विद द चेन आइसोमर्स. तो चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स व्हिच हैव डिफरेंट पेरेंट चेन. ऐसे आइसोमर्स जिनमें डिफरेंट पेरेंट चेन होती है. राइट डाउन आइसोमर्स which have different parent chain. Which have different parent chain. For example, suppose I have C5H12. तो देखिए एक तो मैं 5 मेंबर पेरेंट चेन ले लिया, 4 मेंबर ले लिया, एक सी को यहाँ पे लगा दिया, 3 मेंबर ले लिया, 2 सी को यहाँ पे लगा दिया. ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए? दे आर चेन आइसोमर्स. इसका नाम हो जाता है एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, and this will be isopentane, and this will be neopentane, right? आईपीएसी नेम लिखना चाहूं तो ऊपर वाले का आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन, राइट? 2 मिथाइल ब्यूटेन. इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, राइट? डाइमिथाइल प्रोपेन. एंड ये तो सिंपली पेंटेन ही होगा इसका. आईपीएसी नेम विल बी पेंटेन. So these are nothing but chain isomers. Now we'll do some questions.
Wait, sir. One, two, three. हाँ सर. ठीक है. Okay. Now question is write all the chain isomers, of C6H14. केवल चेन वाले लिखने हैं आपको. You have to write only chain isomers. So you can try once. तो बेसिकली यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन वाले कंसेप्ट का यूज करना है. तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का अभी यूटिलिटी आपको समझ आएगा. एक बार डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने के बाद मुझे पता चल जाएगा डबल बॉन्ड है कि नहीं है, रिंग है कि नहीं है, और उससे मुझे क्लू मिल जाएगा कि मुझे किस तरीके की स्ट्रक्चर्स बनानी है. द पॉइंट. समझा. Now you have to write only chain isomers. See, so first 6 carbon in the chain, and we can see degree of unsaturation is over 0. So there is no double bond, correct, and no ring. So first all 6 carbon in the chain, then 5 carbon in the chain, and one you can put here, and one can be put here also, but then it will be same. It will not be chain isomers, right? And then 4 carbon and 2 carbon you can, one you can put here and one you can put here. Okay, so I have to select only chain isomers. So there will be only 3 chain isomers. Suppose you have to write all structural isomers. You have to write all structural isomers. So write all structural isomers of C6 and H14. So out of them chain will be only 3, but you have to write all. So write all structural isomers of C6H14. Try it. Okay, let us see. So first will be C, सर C, बोलो. C, C. You can just check. I will write. You can check. There is a correct, right? And then you write 4 मेरा भी carbon हो in गया. chain. 1, 2, 3, 4, 5, and one you can put here. Then 1, 2, 3, 4, 5. One you can put here. Now take 4 carbon in a chain, and there are 2 carbons. So 2 carbon you can put here and here. Okay. And one Yes sir. last you can make one here and one here, right?
So these are the 5 isomers, correct? डाइमिथाइल का। Okay. हम्म। Do the next question. Write all the structural isomers. All the structural isomers of C5H10. C5H10 के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखने हैं। करिए जल्दी। Yes, there are so many cases. So first, how to मैं do तो the अभी question? 8 पे पहुंचा हूँ, लग रहा है और भी बने। Calculate degree of हाँ, unsaturation। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकला 1 आया। 1 आया। तो अभी देखें यहाँ पे और क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग, करेक्ट? तो सबसे पहले हम लोग डबल बॉन्ड वाले बनाते हैं। तो 5 कार्बन एटम को पहले चेन में रखो। डबल बॉन्ड को पहले मैंने यहाँ लगा दिया, डबल बॉन्ड को यहाँ लगा दिया। 2 ही पॉसिबल पोजिशन है, करेक्ट? अब मैं क्या करता हूँ, 4 कार्बन को चेन में रखता हूँ एंड डबल बॉन्ड को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया पहले। सब्स्टिट्यूशन को यहाँ रख सकता हूँ, सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पे भी रख सकता हूँ। ये 2 पॉसिबल हो गए सब्स्टिट्यूशन की। फिर मैंने क्या किया, अभी डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज किया, डबल बॉन्ड यहाँ रखा एंड सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पे लगा सकता हूँ। बस सब्स्टिट्यूशन की एक ही पॉसिबल पोजीशन है, इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन को आप कुछ नहीं कर सकते, राइट? सो दीज आर द 5 स्ट्रक्चर्स विद द डबल बॉन्ड। इसके अलावा और कुछ नहीं बना पाएंगे आप। 3 कार्बन को चेन में रखेंगे, देन आपको ऊपर में से कोई मिल जाएगा। अब रिंग में देखो, तो सबसे पहले हम लोग 5 मेंबर रिंग बना देते हैं। बना दिया। फिर आ जाते हैं 4 मेंबर रिंग पे, और एक मिथाइल है, यहाँ लग दिया। अब आते हैं 3 मेंबर रिंग पे, 2 मिथाइल आ गए, तो एक मिथाइल को यहाँ रख सकता हूँ, दोनों को एक पे रख दिया। फिर दोनों को एडजेसेंट रख दिया। उसके बाद मैंने उसको एज ए इथाइल लगा दिया 2 कार्बन को, तो ये 5 साइक्लिक बन जाएंगे। So there are total 10 structural isomers. Got the point? यस सर। डबल बॉन्ड में मैं 2 ही मिस कर दिया। अब इसमें देखिए, लेटेस्ट से मैं बोलता हूँ इसको 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए 1 एंड 2 में रिलेशनशिप क्या है, दे आर चेन आइसोमर, बिकॉज पेरेंट चेन अलग है कि नहीं, चेन आइसोमर्स। सिमिलरली 2 एंड 3 में रिलेशनशिप क्या है, दे आर चेन आइसोमर्स। सिमिलरली 1 एंड 3 में क्या है, वो भी चेन आइसोमर्स है। पेरेंट चेन अलग अलग है, राइट? लेकिन इन तीनों में सेम पेरेंट चेन है, दे हैव सेम पेरेंट चेन, तो ये आपस में चेन आइसोमर्स नहीं है, राइट? सिमिलरली यदि यहाँ पे मैं बोलता हूँ इसको ए बी सी डी एंड ई, ठीक है? और रिलेशन से पूछता हूँ मैं ए एंड बी में, ए बी चेन आइसोमर्स नहीं है, जैसे मैं ए और सी में पूछता हूँ, ए सी क्या है, चेन आइसोमर्स है, में पेरेंट चेन ही अलग अलग है, तो दे आर चेन आइसोमर्स। सिमिलरली मैं पूछता हूँ रिलेशनशिप, ऐसे ए डी भी चेन आइसोमर हो जाएंगे, ए ई भी चेन आइसोमर हो जाएंगे, बी सी भी चेन आइसोमर होगा, बी डी भी चेन आइसोमर होगा, बी ई भी चेन आइसोमर होगा। बट सी डी ई आपस में चेन आइसोमर नहीं होंगे, बिकॉज इसमें पेरेंट चेन सेम है। ओनली द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड इज चेंजिंग एंड पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज चेंजिंग, बट द पेरेंट चेन इज सेम, राइट? गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, दैट इज, सर मैं लिख रहा हूँ, यस, कॉपी कर रहा था।
सर Yes, please tell. सर मेरे को ए और जो सी बोला ना चेन आइसोमर होगा। Yes. पेरेंट चेन अलग अलग है कि नहीं? यहाँ पे तो बताइए, पेरेंट चेन 5 मेंबर की है और यहाँ पे हाँ पेरेंट चेन 4 यहाँ मेंबर पे है, 4 मेंबर की है। हाँ तो पेरेंट चेन अलग अलग हो गई कि नहीं? हाँ तो वैसे तो लाइक ए और डी भी बोल सकते थे। हाँ, तो ए डी भी है, ए कोई और देख ई भी बोल सकते थे। मैं बताया तो आपको, ए डी भी है, ए ई भी है, बी सी भी है, बी डी ओके ओके मैं भी है। ओके ओके मैं पूरा सुना नहीं। ओके यस सर। ओके। So next type of structural isomerism is positional isomerism. Position isomerism. So two isomers which have two or more, which have different position of, which have different position of either functional group or double bond or double bond or substituent, double bond or triple bond both. और substituent. ठीक है, तो two isomers which have different position of functional group, double bond or triple bond or substituent, they are known as positional isomer. Correct? For example, suppose I have so this is one pentene, this is two pentene, right? So these are nothing but position isomers. They have different position of multiple bond. Next, suppose I have OH here and OH here. They are also positional isomer because they have different position of functional group. This is pentane 1 all, pentane 1 all, and this is pentane 2 all. 2 all. Similarly, this one is pent 1 in and this one is pent 2 in, right? सर पेंटेन 1 ऑल होगा कि 2 ऑल होगा और ये वाला 3 ऑल I am होगा। sorry, this is 2 all, this is 3 all, correct. And next, suppose I have so this is 1 chloro, Substituent 1 chloro pentane. Next, suppose I have नहीं 2 क्लोरो। I am sorry, guys. And this is 1 2 3 1 chloropentane, correct? हाँ 1 chloropentane. And next, suppose I have this is 3 chloropentane. So they are nothing but they are positional isomers with respect to each other, right? Got the point? But parent chain should be same, mind it. Parent chain should be same. If parent chain differ हो जाएगी तो उनको हम लोग parent isomer, sorry, chain isomer बोलते हैं। तो लिख लेता हूँ डेफिनेशन। नहीं जाओ। Example. Suppose I have Cl here, and then here and here. So this is nothing but 1,2 dichlorocyclopentane, dichlorocyclopentane.
and this is 1,3 dichloro cyclopentane. So they are also position isomer, correct? Suppose I have CHO here and then CHO here. So they are also position isomer, correct? And then suppose I have CN here and then suppose CN here. Then suppose I have COH here and then I have COH here. All of them are position isomer, correct? All of them are position isomer, correct? Clear? Yes, sir. कुछ भी नहीं क्लियर है, ये गलत है। थोड़ा देखिए इसमें पेरेंट चेन क्या होगा। यहाँ पे पेरेंट चेन ये हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे पेरेंट चेन ये हो जाएगा कि नहीं? पेरेंट चेन ही अलग हो गई यहाँ पे। ठीक है, सो दे आर चेन आइसोमर्स, नॉट पोजीशन आइसोमर। ऑल ऑफ थ्री आर चेन आइसोमर्स। सर ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। हाँ, तो इसको लिख के पहले काटिएगा, नहीं तो गलती करोगे एग्जाम में। लिख के कट करिएगा इस साइड में और उसके बाद लिखिएगा। ठीक है, तो अभी ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हुआ तो द मोनो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है और वो फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो कभी भी पोजीशन आइसोमर बना ही नहीं सकते। अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब ही होता है कि वो हमेशा चेन के एंड में लगेगा। तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है? मैं जहां खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से स्टार्ट होती है। वहीं से शुरू हो जाए। तो उनका पोजीशन आप हाँ। चेंज नहीं कर सकते। सो द मोनो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड विद टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप विल नेवर फॉर्म पोजीशन आइसोमर। नोट करके लिखो नीचे। सर नोट। मोनो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स with terminal functional group, mono functional group containing compound with terminal functional group will never form position isomers, will never form position isomers, right? यस सर, सही। तो ये चेन आइसोमर तो होगा। हाँ, चेन है ना, साइड में लिखा तो हूँ मैं लेफ्ट में। दे आर चेन आइसोमर बिकॉज पेरेंट चेन ही अलग अलग हो जा रही है ना। 5 कार्बन एटम का पेरेंट चेन है यहाँ पे, इधर में 4 कार्बन एटम का हो गया। तो ये सारे के सारे चेन आइसोमर्स हैं, राइट? क्लियर और नॉट? हाँ हाँ क्लियर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन करना। ड्रॉ all the structural isomers of C5H12O. Only alcohols, not ethers. Only alcohols and not ether. केवल अल्कोहल बनाने हैं आपको।
Okay, so इथर first, एक्सक्लूडेड बोला ना. yes, yes. So du is 1, right? You might have calculated du 1 आ रहा है, sorry 0 आ रहा है. Mean there is no ये तो multiple 0 bond, आ रहा है. there is no multiple bond and there is no ring. Now make all the alcohols. So first make the chain of 5 carbon, and then I can put OH here. I can put OH here. I can put OH here. These are the 3 positions of OH, correct? Now reduce the carbon chain size. तो मतलब ऐसे सिस्टमेटिकली करेंगे, देन यू विल नॉट मिस एनीथिंग. पहले मैंने 5 कार्बन बना दिया, OH की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ. नाउ आई विल reduce the carbon chain and I will just put OH here and मैं मिथाइल की पोजीशन चेंज करूंगा. तो मिथाइल को यहाँ तो रख नहीं सकता, यहाँ रखूंगा तो फिर ये केस बन जाएगा ये वाला. तो मैं मिथाइल को यहाँ रख दिया एक बार, फिर मैं मिथाइल को यहाँ रख दिया और यहाँ रखूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, तो वहां नहीं रख सकता. अभी देखिए, अब OH की पोजीशन को चेंज करो. अब मैंने OH को यहाँ रख दिया पहले. अब मिथाइल देखो कहाँ रख सकता हूँ, मिथाइल इसके ऊपर ही रख सकता हूँ. और फिर मिथाइल कहाँ रख सकता हूँ, मिथाइल एडजेसेंट में रख सकता हूँ. बात तो पॉइंट ठीक है. और कुछ कर सकता हूँ क्या? कैन वी डू एनीथिंग एल्स? ठीक है. अब एक काम और कर तो सकते हैं कुछ. 3 कार्बन का चेन बनाओ. 4 में हो गया, कुछ नहीं कर सकता. 3 कार्बन का चेन बना लो और 2 कार्बन को यहाँ पे रख दो और एक OH को यहाँ रख दो. दिस इज द ओनली पॉसिबल थिंग व्हिच यू कैन डू. सो दीज आर द 8 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स. तो इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ, 4 बोलता हूँ, 5 बोलता हूँ, 6 बोलता सर हूँ. इसमें से 3 तो ईथर हो गया. ईथर कहाँ है? वेयर इज ईथर? वेयर इज ईथर? टेल मी, कहाँ पे ईथर? बताइए कौन सा ईथर दिख रहा है आपको? हर जगह पे OH लगा हुआ, ईथर कहाँ से आ जाएगा बाबा? हाँ सॉरी. अब देखिए 1 2 3 में रिलेशनशिप क्या है? 1 2 एंड 3 में रिलेशनशिप क्या है? ये है पोजीशन आइसोमर्स, है कि नहीं? पोजिशनल आइसोमर्स है कि नहीं? हाँ. पोजिशनल. अब यहाँ पे भी देखिए, यदि हम 4 एंड 5 में देखें तो 4 5 में भी मिथाइल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है. तो 4 एंड 5 में भी रिलेशनशिप क्या है? ये भी पोजीशन है, राइट? ठीक है. उसके बाद यदि मैं देखता हूँ 6 एंड 7 में रिलेशनशिप देखो, तो 6 7 भी पोजिशनल है. OH मिथाइल तो सेम जगह पे है बट OH का पोजीशन चेंज हो रहा है, राइट? और यू कैन से OH इज ऑन द सेम प्लेस, मिथाइल का पोजीशन चेंज हो रहा है. तो ये भी है हाँ पोजीशन. 6 7. मिथाइल का पोजीशन चेंज हो रहा है, राइट? तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, राइट? हाँ यस सर. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म. फंक्शनल आइसोमेरिज्म. okay, so isomers which have different functional group, isomers which have different functional group, which have different functional group. मतलब सेम पेरेंट चेन. यहाँ पे पेरेंट मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग हो जाएंगे.
they will have different functional group only. अच्छा For मतलब example, ओके ओके अंडरस्टूड। suppose I have alcohol and ether. अच्छा अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम है वो भी चलेगा? यदि फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गए तो उनको हम फंक्शनल ही बोलेंगे, पोजीशन नहीं बोलेंगे। अभी हम लोग इसका प्रायोरिटी ऑर्डर डिस्कस करेंगे। लेट्स से किसी मॉलिक्यूल में दो टाइप का आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम लोग उसको मतलब क्या बोलेंगे। लेट्स से मेटामर भी है, फंक्शनल भी है, या मेटामर भी है, पोजिशनल भी है, तो उसका एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। उस प्रायोरिटी ऑर्डर में जो ऊपर में आता है हम लोग वो बोलेंगे, राइट। तो हम डिस्कस करेंगे अभी उसको। तो फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास है CC एंड OH, ये अल्कोहल है, एंड देन CCOC, ये ईथर बन गया। फार्मूला तो सेम ही रहेगा, ईथर अल्कोहल। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कीटोन एंड एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्डिहाइड। सपोज आई हैव this is ketone and this is aldehyde. Similarly, we have ester and acid. Suppose I have CH3, C double bond O and OH. So this is your acid. And suppose I have HC double bond O CH3. So this is ester, this is acid, and this is ester. Similarly, suppose I have two double bond and triple bond, two double bond and triple bond. Suppose I have so two double bond, or we can put one triple bond, right? So they are also functional isomers, correct? एस्टर एसिड हो गया, अल्कोहल ईथर हो गया, कीटोन एल्डिहाइड हो गया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गया, राइट। कॉपी कर लीजिए। डन। Okay, next suppose I have phenol and alcohol. Phenol and alcohol are also functional isomers. So this is phenol and this is alcohol. Next suppose I have 1 degree, 2 degree and 3 degree amide. I'm sorry. Suppose I have 1 degree, 2 degree and 3 degree amide.
CH3 CH2 CH2 C double bond to NH2. So this is 1 degree amide. CH3 CH2 C double bond to N CH3. This is 2 degree amide NHCH2 and CH3 C double bond to N CH3 and CH3. This is 3 degree amide, right? 1 degree, 2 degree and 3 degree amide, right? So they will also be functional isomers, right? Similarly, 1 degree, 2 degree and 3 degree amine. 1 degree, 2 degree and 3 degree amine. Suppose I have this is 1 degree amine, this is 2 degree amine and this is 3 degree amine. Molecular formula is same. This is 1 degree, 2 degree and 3 degree, right? Complete. Yes, sir. Next, suppose I have cyanide and isocyanide. Cyanide and isocyanide. So this is cyanide. 1, 2, 3 carbons. And this is isocyanide. So they are also functional isomers, right? Got the point? Okay. Yes, sir. So next we will discuss the metamers. So mind it, 1 degree, 2 degree and 3 degree amine. 1 degree, 2 degree and 3 degree amine are different functional group. They are different functional group. Similarly, 1 degree, 2 degree and 3 degree amides are also different functional group. Different functional groups. Okay. Clear? Yes, sir. Next we will discuss the metamers. Next we will discuss the metamers. Fourth type of structural isomerism is metamers. Metamers. Okay, so what are the metamers? So basically metamers exist करते हैं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में. पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें दो डायरेक्शन से कनेक्टिविटी रहती है, जैसे एस्टर हो गया, दो डायरेक्शन से कनेक्टिविटी है. ईथर हो गया, दो डायरेक्शन से कनेक्टिविटी है. अमाइड हो गया, नाइट्रोजन पे भी कनेक्टिविटी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, राइट. ओके. अमीन हो गया, इधर भी कनेक्टिविटी, इधर भी कनेक्टिविटी, इधर भी कनेक्टिविटी, राइट. कीटोन हो गया, इधर भी कनेक्टिविटी, इधर भी कनेक्टिविटी. तो इस तरीके से ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें दो डिफरेंट डायरेक्शन से कनेक्टिविटी हो सकती है, मेटामर्स उनमें एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. तो मेटामर्स होते क्या हैं? Yes, sir. दो फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस एल्काइल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया HC डबल बॉन्ड O एंड जैसे O
CH2 and CH3 और दूसरा मैंने ले लिया CH3 C double bond O and CH3. So you can see across the functional group there are different alkyl groups. यहाँ पे हाइड्रोजन और इथाइल है, यहाँ पे दोनों साइड में मिथाइल और मिथाइल है, राइट। तो इनको क्या बोल देते हैं, मेटामर्स बोल देते हैं। And there are different alkyl group across a polyvalent functional group and then such isomers are known as metamers. इसे क्लियर हो ना? तो पहले इसको कॉपी कर लो फिर डेफिनेशन लिख लो। क्या हुआ? एल्काइल ग्रुप मतलब अगर लेफ्ट में अगर इथाइल देखे ना है, यहाँ पे राइट में हाइड्रोजन है। मतलब नंबर ऑफ कार्बन अगर डिफरेंस है तो लाइक उसको भी बोल सकते हैं मेटामर। हाँ मतलब अलग ग्रुप है, मतलब दे आर डिफरेंट ग्रुप्स। नंबर ऑफ कार्बन अलग कर दिए तब भी डिफरेंट, दे आर डिफरेंट थिंग्स ना। तो अक्रॉस द ओके polyvalent functional group, if the alkyl groups are different then they are said to be as metamers, right? यस सर, डेफिनेशन क्या लिखूं? Write down two isomers which have different alkyl groups across a polyvalent functional group which are different alkyl group across a polyvalent functional groups. Correct? For example, let us take some example. Suppose I have let us say CH3 CH2O CH2 and CH3 and next suppose I have CH3O CH2 CH2 and CH3। ये दोनों क्या हो गए, मेटामर्स हो गए। दोनों साइड में इथाइल इथाइल है, एक साइड में मिथाइल है, एक साइड में प्रोपाइल है, राइट। नेक्स्ट सपोज आई हैव this is in the both side we have ethyl ethyl, one side it is methyl and one side it is propyl, so they are metamers and we can see they are also positional isomers, correct? They are also positional isomers, right? सेम पे, हाँ सेम चेन है। लेकिन यहाँ पे सिंस यदि Parent हमको chain सिंगल same। करेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो हम इसको मेटामर्स लिखेंगे। क्यों मेटामर्स लिखेंगे? बिकॉज मेटामर का प्रायोरिटी पोजिशनल आइसोमर्स से ऊपर होता है। एंड अभी मैं लिखूंगा प्रायोरिटी ऑर्डर, तो पोजिशनल भी हैं बट अभी तभी भी इनको हम मेटामर्स ही बोलेंगे बिकॉज मेटामर्स का प्रायोरिटी पोजीशन से ऊपर होता है, राइट। कॉपी कर लिया? हाँ यस सर। नेक्स्ट सपोज आई हैव so this I am sorry here oxygen then methyl. Now next suppose I have no sorry suppose one more carbon in there, सेम हो जाए। one more carbon in there, then so see here both side ethyl and ethyl are there, one side propyl is there and one side methyl is there, so they are nothing but metamers, correct? ये तो मेटामर्स हो गए कि नहीं? इधर में इथाइल है, इधर में भी इथाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल है, इथाइल है, राइट। नेक्स्ट सपोज आई हैव
double bond O N and next suppose I have so here we can see here I have propyl, methyl and ethyl. Although here I have ethyl, ethyl and ethyl. So then they are nothing but Yes, sir. functional metamers. They're only Mind it, metamers. mind it, ये भी 3 डिग्री अमाइड है और ये भी 3 डिग्री अमाइड है. तो एल्काइल ग्रुप को चेंज करते समय अमाइड का डिग्री नहीं चेंज करना है. जब डिग्री चेंज कर दिए तो क्या बन जाएंगे? फंक्शनल आइसोमर बन जाएंगे, राइट. यहाँ पर नोट करके लिख लेना. डिग्री ऑफ अमाइड शुड बी सेम. डिग्री ऑफ अमाइड should be same, otherwise they become functional isomers. Because functional का प्रायोरिटी मेटा से ऊपर होता है. Okay, next suppose I have N, H and CH3. This is H. CH3 and CH3. Sorry, CH2, CH3, and this is H only. So here we can see this is propyl and methyl. Here it is ethyl and ethyl. Okay, it is also 2 degree amine and this is also 2 degree amine. So degree change कर देंगे तो functional बन जाएगा, right? So you don't have to change the degree, right? इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को इंटैक्ट रखा, यहाँ पे मैंने एक और ऐड कर दिया कार्बन, राइट. तो उधर भी नीचे नोट करके लिखना, डिग्री ऑफ अमीन शुड रिमेन सेम. डिग्री ऑफ अमीन शुड रिमेन सेम. डिग्री ऑफ अमीन शुड रिमेन सेम. सर मैं ऊपर ही लिख दिया उसमें एमाइड स्लैश अमीन लिख दिया. नो प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट इज टॉटोमरिज्म. ऑल्दो टॉटोमरिज्म को हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. टॉटोमरिज्म इज अ बिग टॉपिक, तो उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे. यहाँ पे बस छोटा सा डेफिनेशन लिख लेंगे टॉटोमरिज्म का. दैट्स इट. देन टॉटोमरिज्म वी विल डिस्कस इट सेपरेटली, राइट. नेक्स्ट इज टॉटोमर्स. तो बेसिकली टॉटोमर्स क्या होते हैं? टॉटोमर बेसिकली दे आर वन काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स ओनली. बट डिफरेंस क्या होता है? फंक्शनल आइसोमर्स का इंडिपेंडेंट सेपरेट एग्जिस्टेंस रहता है, जबकि टॉटोमर्स क्या रहते हैं? एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं. मतलब एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है एंड वाइस वर्सा. जबकि फंक्शनल ग्रुप में ऐसा नहीं होता है. फंक्शनल ग्रुप का इंडिपेंडेंट, क्योंकि टॉटोमर्स एक दूसरे में क्या रहते हैं? इंटर कन्वर्टिबल रहते हैं. So this is the difference between tautomers and functional isomers. Tautomers are also functional isomers, but condition is that these functional isomers they remain in equilibrium with each other and they are interconvertible into each other. While functional isomers they have independent existence. उनमें ऐसा कुछ इक्विलिब्रियम जैसा एग्जिस्ट नहीं करता है ना, वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल भी नहीं रहते हैं, राइट. Got the point? Yes sir. So write down the definition. They are the functional isomers which are in dynamic equilibrium with each other. They are functional isomers which are in dynamic equilibrium with each other.
which are in dynamic equilibrium with each other. हुआ तो भाई? हाँ, डेफिनेशन से उतना कुछ तो समझ नहीं आया। Okay, so now let us take the examples. Suppose I have this ketone, and then so there are different type of tautomerism. This is one type of tautomerism, that is ketoenol. कीटोइनॉल एंड टॉटोमेरिज्म को हम लोग डिस्कस करेंगे सेपरेटली, बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे भी डेफिनेशन लिख के आगे बढ़ जाएंगे, कैसे होता है, व्हाट ऑल डिटेल्स आर देयर, दोस थिंग्स विल डिस्कस सेपरेटली। तो ये कीटो बन गया, इसी का इनॉल फॉर्म बन जाता है ये, दिस इज नोन एज इनॉल। व्हाई इनॉल? बिकॉज दिस इज इन एंड दिस इज ऑल, करेक्ट, तो इसलिए इनॉल। तो दिस इज कीटो फॉर्म एंड दिस इज इनॉल फॉर्म। ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं। कीटो फॉर्म इनॉल में कन्वर्टिबल रहती है, इनॉल फॉर्म कीटो में कन्वर्टिबल रहती है। तो इनका जबकि जो तो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स आल्सो। यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे इनॉल फंक्शनल ग्रुप है, बट कंडीशन क्या है, एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में है और एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल रहते हैं, इसलिए इनको हम लोग टॉटोमर्स बोल देते हैं, राइट? यस सर। सिमिलरली एक और वन मोर टाइप ऑफ टॉटोमरिज्म इज नाइट्रोसो ऑक्साइड। नाइट्रोसो ऑक्साइड, ठीक है। सपोज आई हैव नाइट्रोसो का एन डबल बॉन्ड ओ, सपोज आई हैव आर CH2 एन डबल बॉन्ड, दिस इज नाइट्रोसो। इसको कन्वर्ट कर दो ऑक्साइड में, RCH डबल बॉन्ड N एंड OH, तो ये बन गया आपका ऑक्साइड। एंड दिस इज नाइट्रोसो। So this C double bond N and OH, this particular functional group is known as oxide. Okay, यस सर। अभी क्या होता है, जितने भी टॉटोमर्स होते हैं सारे के सारे ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सॉरी सारे के सारे ही फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। फंक्शनल आइसोमर ऑल फंक्शनल आइसोमर्स आर नॉट necessarily आर नॉट tautomers, correct? समझ Write गया। down, all tautomers are functional isomer, but reverse is not true. All tautomers are functional isomers, but reverse is not true. Okay, यस सर। now let us write down the priority order of different functional group. What is the priority order? So priority of different isomerism. Different types of structural isomers. तो ये प्राइयोरिटी आप याद रखने हैं। दिस इज RTF MCP, RTF MCP। तो R इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म, T इज टॉटोमेरिज्म। ये कब पढ़ा? मैं बताता हूँ रिंग चेन क्या है। नहीं पढ़ा ना। F इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, M इज मेटामर, C चेन, सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी होता है पोजीशन का।
रिंग चेन इज नथिंग बट, रिंग चेन शॉर्ट में बता देता हूँ, रिंग चेन बहुत सिंपल है. So here one isomer will be ring and another is chain. One isomer is ring and another is open chain. Another is open chain. For example, CH3, CH2, CH2OH. This is open chain and this is ring. So they are known as ring chain isomers. So this is the priority order of different type of structural isomers, right? This is clear? हाँ क्लियर है सर. चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं. Let us do one question. Write the relationship between pairs of compound. Write the relationship between pairs of compound. Between pairs of compound. Suppose I have and next suppose I have बताइए इनमें क्या रिलेशनशिप होगा. What will be the relationship in them? और बताता हूँ. HO N next I have OH. इनमें बताइए क्या होगा. Third suppose I have इनमें बताइए. Fourth suppose I have सर रिलेशनशिप मतलब किस टर्म बेसिस के ऊपर? तो किस टाइप के आइसोमर्स हैं. जो मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़े ना, उसमें पोजीशन है, चेन है, फंक्शनल है, मेटामर्स है, क्या है. अच्छा अच्छा ओके ओके. और अभी क्या पढ़ा हूँ, वही तो पढ़ा हूँ. नहीं मैं मेरे को थोड़ा वो हो गया. ठीक है, कोई बात नहीं. तो देखिए ये क्या बन गया, बता रहा हूँ जल्दी से. सर मैं बोलूंगा बोलूंगा ट्राई करिए. वो खुद करने एन है. सी
So this is nothing but polyvalent functional group. And कभी भी polyvalent functional group आए सबसे पहले आपको metamer check करना होगा. You can see there are different alkyl group across this, so they are nothing but metamers. Obviously they are positional, but metamer has higher priority over the position, so metamers हो जाएंगे. यहाँ पे भी देख सकते हैं अमीन है, अमीन भी आपका polyvalent functional group होता है, और इसके अक्रॉस functional group इसके अक्रॉस alkyl group अलग अलग है. यहाँ पे वो इधर लगा हुआ, यहाँ पे वो इधर लगा हुआ, इसका मतलब alkyl group अलग अलग हो गया कि नहीं? तो ये भी क्या बन गया, ये भी मेटामर्स बन गया. यहाँ पे आप देखते हैं ये ईथर है और ये अल्कोहल हो गया, तो ये क्या बन गया, ये फंक्शनल बन हो गया. फंक्शनल. टॉटोमर से देख के कैसे बताएंगे आप? फंक्शनल आइसोमर्स. अब इनमें देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो ये आइसोमर्स नहीं है, दे आर नॉट आइसोमर्स. मोल का फार्मूला अलग अलग होगा, तो हैं क्या ये? आप देख सकते हैं ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है, तो ये होमोलोग्स हो गए. दीज आर होमोलोग्स. होमोलोगस सीरीज में, होमोलोगस सीरीज क्या होता है? इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप. आप देख सकते हैं दोनों में एल्डिहाइड है, दोनों एल्डिहाइड ही है. यहाँ पे 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, यहाँ पे 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो इनमें रिलेशनशिप क्या होगा, ये बन गया होमोलोग्स. करेक्ट. चलिए और क्वेश्चंस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज write all ethers of the compounds. Write all ethers of compound with molecular formula C5H12O. C5H12O. You have to write all the ethers. Try करिए. Okay, let's head now. So first what I will do, 1 carbon this side and 4 carbon this side, right? अब इनमें भी ब्रांचिंग करता हूँ पहले. तो फिर मैंने 3 कर दिए, ब्रांचिंग यहाँ पे लगा दी, ब्रांचिंग यहाँ पे लगा दी. फिर मैंने क्या किया, 2 को ले लिया और एक को ब्रांचिंग यहाँ कर दिया, एक को ब्रांचिंग यहाँ कर दिया. ये भी डिफरेंट है, राइट? These are 4s. Now 2 carbon one side and 3 carbon one side. इसमें भी ब्रांचिंग कर सकते हैं, यहाँ पे लगा दिया. Anything else can be done? 2 3 and then yes, this is done. 1 4 and then 3 1 here, 1 here, इतना ही होगा. and then I have brought 2 here. Okay. हाँ दिख गया, मेरा गलती दिख गया. And one more can be done. वन मोर कहाँ से होगा? Okay, these are 5. बाकी सब करने से तो सिमिलर हो जाएगा. Anything else? Anything else can be done? No. Sure. हाँ मेरे को तो लग रहा है वही. 2 carbon 3 carbon, yes. So how many cases are? 1 2 3 4 5 6. Yes, correct. All the cases are there. Okay. So today we'll stop here. हाँ. In the next class, right?